Good afternoon, everyone. This session is specially kept for all young people, and in this weekly activity of our Department of Diploma in Engineering, we have with us Dr. Anurag Sharma. He is MD Pediatrics. He is the senior consultant, and he's having the experience of 25 years. He is the Vice President, Integrated Academy of Pediatrics, and also he is the Secretary of Doctors Social Welfare Society, Jaipur. And earlier he was the past Secretary of Medical Practitioner Society, Jaipur. And he is the consultant of Katwa Hospital and Aditya Hospital, and he is also a visiting consultant of Surya Hospital and Babylon Hospital. He is an eminent doctor, a very popular doctor, very popular among young people. He's here to answer all your questions, all your queries. So I request Dr. Anurag Sharma to kindly proceed. Thank you, sir, for joining. Yes, sir. Thank you, Ruchi ji. I first of all thank the department and Gyan Vihar University as such, and especially the coordinators Ruchi ji and Ravinder ji for giving me chance to talk and interact with the mainstream citizens of the country. The age group to which they belong, they are going to carve out a niche for themselves and the country. So it is a great feeling to be among them, and I hope we will have some good interactive session today during my deliberation. और मैं आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर अनुराग शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आप लोगों की एज ग्रुप, मेरे एज ग्रुप जो मैं देखता हूं राइट फ्रॉम बर्थ टिल 18 इयर्स ऑफ एज, ज़्यादातर आप लोग उस एज ग्रुप डोमेन से बाहर हैं। बट जो आज का टॉपिक है कि हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज इन मानसून, वो बहुत हद तक बच्चों पे और बड़ों पे बराबर लागू होता है। तो वी विल टेक दैट. Besides that, few questions I have received already from the audience. उनको भी मैं आंसर करूंगा। आप लोग बीच में कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो you can coordinate with Ruchi ji or you can ask me later. But I would definitely welcome any interaction, any question, any query regarding the infections and Corona which is going on, or anything else that you want to ask. You are most welcome. So first of all, अभी मानसून सीजन चल रहा है, बट हाईलाइटेड जो डिजीज इस वक्त है, जो पैंडेमिक चल रहा है, दैट इज कोविड-19. तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी अपने कंट्री में. Recently, there was a statement from Dr. Kang, who is one of the most prominent microbiologists of the country. He said that it all depends on the mutation of the virus. जो pandemic ये हो रहा है, it is like alpha, beta, gamma, theta, and now the delta. Surprisingly, they named them by the physics terminology, but these are the strains which are of concern, and the most important and the most concerned strain presently moving around in the world is Delta. And even now the China has seen the upsurge of the Delta variant, which was initially started in India, and India has suffered a lot already. तो ऐसा मानते हैं कि अगर म्यूटेशन होगा, फिर से कोई स्ट्रेन उभर के आती है और वो इतनी ही विरुलेंट होती है जितनी स्ट्रेन्स रही हैं, तो वो थर्ड वेव का जनक हो सकती है. But the thing is, in the recent survey and the study by Indian Council of Medical Research, it has been found that 65% of the Indian population has become seropositive. Seropositive का मतलब ये होता है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में बन चुकी हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस. The remaining 35% are still vulnerable. And considering the massive population of more than 130 crores in our country, even those 35% cause lot of bulk. वो उसके लिए अपने को सावधानी जो है वो रखनी जरूरी है.
बट ऐसा मान रहे हैं कि थर्ड वेव अगर आती भी है तो इट विल नॉट बी लाइक अ स्टीप माउंटेन विच वी हैव सीन, इट माइट बी जस्ट अ हिल विच वी हैव टू क्रॉस। ऐसा एक टर्म यूज किया जा रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन नंबर. It has nothing to do with the reproduction that you know. It is the reproduction number, means a person who is already infected, how many persons he can infect further, वो कितने और लोगों को इन्फेक्शन पास ऑन कर सकता है अपना. तो वो अगर 1 से नीचे रहता है तो किसी भी स्पाइक को या वेव को आने में टाइम लगता है और उसके आने के चांसेस कम रहते हैं. अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 1-2 स्टेट्स हैं जैसे केरल है, पुडुचेरी, कर्नाटक, इनमें जो रिप्रोडक्शन नंबर मोर देन 1 चल रहा है, और कुछ 1 पे हैं जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा वगैरह. ये लेस देन 1 आ जाएगा. जो भी हमारे, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर 2 ही प्ले करेंगे रोल, नेचुरल इन्फेक्शन जिससे इम्यूनिटी डेवलप होगी, और दूसरा वैक्सीनेशन. तो आई होप आप सब 18+ हैं मोस्टली, तो आई होप यू हैव गॉट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. वैक्सीनेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट, जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा, जितनी डोज जो जल्दी कवर करेंगे, उतना ही चांसेस ऑफ कैचिंग कोरोना विल बी लेस. माइंड यू, कैचिंग कोरोना is a different thing and dying of it is a very different thing. So if you are vaccinated, you might get infected with corona, but chances of getting severe corona, getting ICU hospitalization or dying of it become very, very less. तो वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोरोना से वैक्सीनेशन जरूरी है. जो कोविड प्रोटोकॉल हम अभी तक इतना करते रहे हैं, हैंड हाइजीन, washing hands with soap and water, using sanitizers if soap and water is not available, social distancing of minimum 2 meters, and mask, using the mask, ये हमको सब मालूम है, ये अच्छी तरह आप सब जानते हैं, ये करना ही है. But the fourth thing which has to be added now, because it is available and it is the most effective way, is the vaccination. वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल नहीं छोड़ना है. सब मैं तो अब वैक्सीनेटेड हो गया, मैं तो वैक्सीनेटेड हो गई हूं, अब मुझे कोरोना छू नहीं सकता. नो, यू हैव टू टेक ऑल ड्यू प्रिकॉशंस विच यू वर टेकिंग प्रायर टू द वैक्सीनेशन. तो ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा सवाल जो बहुत अहम है, अक्सर पूछा जा रहा है, वैक्सीनेशन कराना है, वैक्सीन कौन सा लगाएं? आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ऑल ऑफ यू पीपल टू गो फॉर व्हाटसोएवर वैक्सीन इज अवेलेबल एट योर नियर डोर स्टेप. बिल्कुल इसमें मत पड़ो मैं कोविशील्ड लगाऊं, मैं कोवैक्सीन लगाऊं, मैं स्पुतनिक लगाऊं, मैं फाइजर या मॉडर्ना के वैक्सीन का वेट करूं. डोंट डू दैट. जो वैक्सीन अवेलेबल है वो इफेक्टिव है. जो वैक्सीन अवेलेबल हुआ है वो पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद अवेलेबल हुआ है. उसकी एफिकेसी, उसके ट्रायल सब चेक किए जा चुके हैं, उसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं, नहीं है, उसके बाद ही मार्केट में या गवर्नमेंट के पास ये वैक्सीन आता है. तो डोंट गो इनटू दैट हैसल कि मुझे वैक्सीनेशन में आई विल वेट फॉर दैट, कौन सा मैं तो कोवैक्सीन लगवाना चाहता हूं या चाहती हूं और मैं तो कोविशील्ड नहीं लगवा, ये सब नहीं करना है. ऑल वैक्सीन्स आर गुड, बट गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड फास्ट. Register if there is registration available. There are many hospitals which are giving vaccine. Just step into them and they will give you the vaccine. That are mainly private sector hospitals. You have to pay for them. Otherwise, in the government sector, just register and try to get the vaccination as far as possible, as quickly as possible, and both the doses accordingly. Like for Covaxin, you have to wait for 1 month, and for Covishield, you have to wait for 84 days. And don't miss the second dose. Don't think that first dose is sufficient. Second dose has to be taken. So this is the thing. Secondly, other question that is being asked very frequently is pregnant mothers, girls and females who are having menstruation, and lactating mothers who are breastfeeding their children, whether they should be vaccinated or not, whether they should get the jab or not. So I would strongly recommend again, there is enough evidence and enough data to prove that it is highly beneficial to all these 3 categories, and all of these females and the lactating ones and the pregnant ones and who are menstruating should get the vaccination as early as possible. So this is about the COVID thing, as I have briefed you.
one or two things more have been coming. Like last August, it was like survival of the fittest for the coronavirus. It survived the other bacteria and viruses, emerged as the most virulent thing and causing such rampant and disastrous diseases. But presently, what as a pediatrician also I am seeing, lot of cases of other viral illnesses are coming, like chikungunya, dengue, and other bacterial illnesses like typhoid. They are also coming. So this slightly in another way you can say that corona this time is not as prominent and the other diseases are taking over. So that seems as if the pandemic is dying its own death also. But we have to be cautious. We have to be very particular about all the protocol and the vaccination. I hope I have made my point clear. Ruchi ji, anybody who wants to ask anything on COVID presently, or should I switch on to the next thing? Yes, sir. Sir, please carry on, sir. Okay, I'll carry. So at the end, we'll ask them to, ask them the last of the thing. Last, yes. Okay. So now I come over to the main topic. Besides that, of course, discussing corona in brief, and you are most welcome to ask me later on about query and about anything. How to prevent the monsoon diseases. Now, see why we have taken this topic. Presently, of course, monsoon is going on. Fortunately, it has been raining cats and dogs in recent 2-3 days. The fluctuation in temperature, there is drastic fluctuation in temperature during monsoon season. Sometimes it might be very hot and humid. Suddenly the clouds are hovering, the rain is coming, और पूरा बहुत वातावरण ठंडा हो जाता है. ये जो फ्लक्चुएशन है, ये वायरस और बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत कंड्यूसिव है. वायरस और बैक्टीरिया की ग्रोथ इससे बहुत जल्दी होती है, इस फ्लक्चुएशन से. जितना डे एंड नाइट वेरिएशन होगा, जितना डे के अंदर मॉर्निंग इवनिंग वेरिएशन होगा टेम्परेचर का, उतना वायरस और बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं. इसलिए मॉनसून बीमारियों का जनक है, बहुत बीमारियों का जनक है. और मॉनसून में जो बीमारियां होती हैं कॉमनली, वो अगेन मॉस्किटो बॉर्न होती हैं. एक तो भाई मच्छर बढ़ जाते हैं, तो उनका प्रिवेंशन. तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं मेनली? लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. दीज आर मॉस्किटो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस. सो हाउ टू प्रिवेंट देम? एंड you know all of them are very dangerous. They can affect any part of the body. Most of them have fever and spleen is enlarged, joint pains are there, rashes can be there, vomiting, and all these symptoms are there. So among these 3 diseases, how to prevent them? So we have to first of all be clothed, full sleeve clothes, especially because it is monsoon, it is humid, so wear cotton clothes. Have full sleeves. Even at home, try to be in full sleeves clothes. Prevent mosquito bite at any cost. Secondly, don't store water anywhere. If there is some contingency, मजबूरी है कि हमें पानी को स्टोर करना है, then you have to cover it. जो भी stored water है उसको कवर करके रखना है. Because मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेसेस सबसे ज्यादा स्टोर्ड वाटर होती है, स्टैग्नेंट वाटर. उसमें मॉस्किटो सबसे ज्यादा ब्रीड करते हैं, और जितने होंगे उतनी प्रोबेबिलिटी टू कैच अ बाइट एंड टू कैच द इन्फेक्शन रहेगी. सो दैट इज. थर्डली, मॉस्किटो रिपेलेंट्स आर frequently very much available. Use them whenever there is need. Mosquito repellents can be used. So mosquito bite has to be prevented to prevent mosquito-borne diseases, which are very common in monsoon and they will linger till early winter, and they are all dangerous. तो अपने को पहला तो इसमें अपने को that is the most important अपने को करना चाहिए. Second is water and food-borne diseases. Contamination बहुत जल्दी होता है, as I suggested just now, कि तो वायरस और बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है. तो होम कुक्ड फूड, फ्रेश. हमारे साथ आज डाइटिशियन भी हैं, वो आपको सारी बात बताएंगी लेटर ऑन, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ. होम कुक्ड फूड हो, फ्रेश फूड हो, वो ही आप उसका सेवन करें. भोजन जहाँ तक हो सके बाहर का कदापि ना खाएं इस मौसम में. मैं जानता हूँ कि जीवाह जो है उसको शांत रखना आसान नहीं होता है, बट
You have to control your tongue for a while during monsoon, and try to have home cooked fresh food. So that is as far as food is concerned. Try junk food. Try to avoid junk food and have home cooked fresh food. Wash the vegetables and fruits. Boil the vegetables properly before having them. These are basic ingredients you all might be knowing, but it is good to revise and remind yourself again and again before you go for any adventure like junk food and other places. Secondly, water is very important, and these water and food related illnesses, mostly two are very common: typhoid and hepatitis. Typhoid, as you all have heard, मोती जरा के नाम से भी जानते हैं, निकाला, मियादी बुखार, तपेदिक, कई नाम से इसको टाइफाइड को जाना जाता है. Very bad illness, can affect any organ of the body, can affect joints. It starts in the intestines, even intestinal perforation कर सकती है complication के रूप में. High grade fever रहता है, एनोरेक्सिया मतलब एपिटाइट लॉस हो जाता है, वोमिटिंग्स, पेट दर्द वगैरह हो सकता है, और हल्का सा रैश आ सकता है बॉडी पे. ये टाइफाइड के लक्षण होते हैं और बहुत खराब बीमारी है. टाइफाइड को प्रिवेंट करना है तो अपने को फूड और वाटर कंटामिनेशन को रोकना है. हाउ टू स्टॉप वाटर कंटामिनेशन? प्रेफरेबली द बेस्ट थिंग इज टू बॉयल एंड कूल इट, देन ड्रिंक इट. दैट इज द बेस्ट थिंग. बट अदरवाइज use your purifiers whatsoever you have, and try avoiding drinking water anywhere, everywhere. Try taking your water bottles along with you and try to consume. This is especially for monsoon. See, this can be done perennially throughout the year also, but we know that the illnesses are rampant during this period. तो इसमें अपने को ये precaution बहुत जरूरी है कि हम लें. So that is very important. So typhoid, as I told you, has to be prevented. And other illnesses, hepatitis. Hepatitis का मतलब होता है लिवर में सूजन. हेपेटिक जहां वर्ड आ जाता है वहां लिवर से कनेक्टेड होता है मामला, और आइटिस जहां वर्ड आ जाता है ना मेडिकल साइंस में, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन. हेपेटाइटिस का सबसे कॉमन कारण वायरल हेपेटाइटिस. वायरल में ABCDE सबसे कॉमन, उसमें हेपेटाइटिस A, उसका सबसे कॉमन कारण कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. तो ये इस तरह से चेन है, इसको रोकना है. इसको रोकने के लिए हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोरोना में यूज कर ही रहे हैं अपन हैंड हाइजीन. सब सीख चुके हैं कि किस तरह से 25 से 30 सेकंड के अंदर हाथ को धोना होता है. तो आप सारा फिनोमेना देख चुके हैं, ये सब बहुत जरूरी है. तो हैंड हाइजीन हो गया, वाटर एंड फूड कंटेमिनेशन रोकना है, और 2 वाटर और फूड बॉर्न डिजीज जो खतरनाक है, जानलेवा हो सकती हैं. हेपेटाइटिस का मेन सिम्टम होता है जॉन्डिस, पीलिया. उसके अलावा फीवर, पेट दर्द, वोमिटिंग और भूख नहीं लगना. ये 4 प्रमुख लक्षण साथ में होते हैं. तो कई बार पीलिया तो बाद में आता है, ये लक्षण पहले शुरू हो जाते हैं. तो डायग्नोज करना एक ट्रिक होती है कि उसको जल्दी डायग्नोज कर सके ताकि टाइमली मैनेजमेंट उसका हो सके हेपेटाइटिस. इट कैन बी वेरी डेंजरस. अगेन मैंने कोरोना के बारे में भी बताया था, इन दोनों के लिए भी मैं आपको बताऊं. हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B. हेपेटाइटिस B भी बहुत खतरनाक होती है. वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इस तरह से सीक्रेशन से आती है आपके शरीर में. दोनों के अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है. टाइफाइड के अगेंस्ट में वैक्सीन अवेलेबल है. अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है फिनोमेना, वो है एडोलेसेंट्स और एडल्ट वैक्सीनेशन. फैमिली वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं. अगर आप लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप लोग अपने आप को वैक्सीन से लगवाएं. टाइफाइड के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट. वी शुड गेट ऑल द वैक्सीन प्रिवेंटेबल वैक्सीन्स. जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं उनके अगेंस्ट में हम सबको अपने वैक्सीन लगाने चाहिए. टीकाकरण देखिए आप, अभी कितना महत्वपूर्ण हो गया. कोरोना से लोगों में जागरूकता आई है कि टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन, पर हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है. आपकी एज ग्रुप के बहुत कम बच्चों को पता होगा कि टाइफाइड और हेपेटाइटिस से वैक्सीन अवेलेबल है आपकी एज ग्रुप के लिए भी. तो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे. आप ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आपके एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, आपके अवेयर पेरेंट्स हैं.
बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होंगे इन बीमारियों के खिलाफ, बट जो अभी तक वंचित रहे हैं या जिनको अवेयरनेस नहीं है या किसी कारणवश छूट गए हैं, they should get the vaccines done. We get so many children these days around 11 12 who are and in the university students also. These days the universities have started demanding the vaccination card of the child before giving the admission. So and the children who are going out of the country, the universities from there, all universities, Philadelphia and Oxford, everybody is asking for the vaccination card from the children who are going from India. And we have to give them the vaccine at that time. And they are in a hurry. They have to get the passport. They have to leave the country. So it becomes a panic for them. So it is the timely vaccination is important. And of course, as I told you, they are water and foodborne. So we have to prevent those things. Contamination has to be prevented. किसी भी कॉस्ट पे अपने को वो प्रिवेंट करना चाहिए. तो हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आई हैव टॉक्ड अबाउट. जो कॉमन इलनेस मानसून में अनदर इज फ्लू एंड कोल्ड, स्वाइन फ्लू. इवन स्वाइन फ्लू वैक्सीन इज अवेलेबल, सो गेट इट डन. कॉमन कोल्ड, टेम्परेचर वेरिएशन, कूलर, एयर कंडीशनर, फैन जुडिशियस यूज होना चाहिए. कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, टेम्परेचर कितना रखना है. तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है बाहर की, उसके हिसाब से इनका यूज करना है. बाहर अच्छी खासी मौसम में ठंडक है, एसी अंदर 19-20 पे चलाएंगे, चांसेस बढ़ेंगे इन्फेक्शन के, कोल्ड के. सिमिलरली अपने को ओवरक्राउडेड प्लेसेस से बचना है. कॉमन कोल्ड और फ्लू का सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो कोरोना में भी लागू होता है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट वायरसेस, इलनेसेस हैं, तो ओवरक्राउडेड रुकना है. आप में से कुछ बच्चे हॉस्टल में रह रहे होंगे और कुछ बच्चे बाहर भी हैं, रूम में शेयर कर रहे होंगे, तो वो ध्यान रखना है इस बात का कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें जितना पॉसिबल, और हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश करें. तो ये जो है इलनेसेस हो गई. Another very common illness during this period which we get is acute gastroenteritis, आंत्रशोथ, उल्टी, दस्त. बहुत कॉमन है, पेट दर्द, उल्टी, दस्त. सेम फिनोमेना, हैंड हाइजीन, stop eating outside as far as possible, have homemade fresh food and vegetables. So that is the, तो मानसून प्रिवेंशन, मानसून की डिजीज जो प्रिवेंट करनी है, मैंने आपको डिजीजेस बता दी जो कॉमनली इस वक्त होती हैं, और उनका प्रिवेंशन मैंने आपको बता दिया. और मैंने एक जो पॉइंट हाईलाइट किया आप लोगों के, वो है वैक्सीनेशन, जिसको मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ. आप लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है और ये आपको करना है. I have received 3 questions so far. रुचि जी, is it okay? Yes sir. वो मैं वही कहना चाह रही थी कि कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस जो आपको भेजे थे, जिसमें से आदित्य ने एक क्वेश्चन भेजा था, why चिकन पॉक्स हैपन इन द एज ऑफ 8 to 14 years, कि बच्चों में चिकन पॉक्स क्यों होता है? हाँ जी. The thing is, frankly, it is not a very common illness of 8 to 12 or 8 to 14 years. Frankly, chicken pox happens below 5 years of age, most commonly. And then another peak comes at around adolescent age, 14, 15, 16, 17, early teenagers and teenagers. Why it so happens? Mostly, एक तो इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है छोटे बच्चों में. सेकेंडली, वैक्सीन से प्रिवेंट होता है चिकन पॉक्स. फर्स्ट डोज लगा दी जाती है 12 to 15 मंथ्स पे, और सेकेंड डोज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिकमेंडेड है 4.5 to 5 years पे. कुछ वर्ष पूर्व सिर्फ one dose of चिकन पॉक्स वैक्सीन वाज रिकमेंडेड फ्रॉम 12 to 15 months. इट वाज फाउंड वो इफेक्टिव नहीं हो रही है, सिर्फ सेकेंड डोज रिक्वायर्ड है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4.5 to 5 years पे भी रिकमेंड किया. 2 डोज लगने के बाद ये पाया गया चिकन पॉक्स या तो नहीं होता है, होता है तो बहुत माइल्ड वेरिएंट के रूप में होके निकल जाता है. बट अगर कोई कंडीशन ऐसी है जहाँ पे चिकन पॉक्स किसी पॉकेट में, एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे वैक्सीन को फर्स्ट डोज के 3 महीने के बाद भी लगाया जा सकता है. जो बच्चे अभी आप लोगों के पास हैं, मान लीजिए इनमें से किसी को चिकन पॉक्स हो चुका है, तो वो नेचुरली इम्यूनेटेड है, उनको इम्यूनिटी नेचुरली डेवलप हो चुकी है, उनको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है. ये उनको अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए. बट
अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनका अगर चिकन पॉक्स अभी तक नहीं हुआ है, तो इस एज पे अगर चिकन पॉक्स होता है वो जनरली बहुत सीवियर और कॉम्प्लिकेशंस के साथ हो सकता है. तो अगेन एज आई एडवाइज, डोज, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज आफ्टर 1 month ऑफ द फर्स्ट डोज, तो उससे प्रिवेंशन कर सकते हैं. डॉर्मेट्रीज में, स्कूल्स में, हॉस्टल्स में, जहां भी ओवर क्राउडिंग होगी, चिकन पॉक्स बहुत हाईली कंटेजियस है. एक तो कम इम्यूनिटी और फिर ओवर क्राउडिंग क्लासरूम्स वगैरह में, उससे फिर जल्दी इफेक्ट होते हैं चिकन पॉक्स में. हाँ, नेहा यादव का एक क्वेश्चन आया था. हाँ, उसमें उन्होंने पूछा था कि कॉमन कोल्ड जो है वो छोटे बच्चों में, बच्चों को जुकाम का प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है. तो ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम यंग होते हैं तो हमें बहुत जुकाम होता है? अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यंग लोग जो हैं, जो टीन्स में हैं, या उन्हें जुकाम बहुत होता है. हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये टेंडेंसी कुछ कम हो जाती है. ऐसे क्यों है? हाँ जी, ये देखिए कि इसको जो कॉमन कोल्ड है, इसको मेडिकली टर्म्स में हम राइनोसाइनोसाइटिस बोलते हैं. ये राइनो वायरस से होता है. मोर देन 75% इसमें राइनो वायरस इन्वॉल्व होता है. वायरल इलनेस है मेनली, और भी रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, एमपीवी, और भी एडिनो वायरस, पोलियो वायरस इवन कैन कॉज. सो ये वायरसेस कॉमन कोल्ड या फ्लू कर सकते हैं. और ये पाया गया है कि 6 to 8 एपिसोड्स विद इन 1 year ही कॉमन कोल्ड के बच्चों में हो जाते हैं. इन्फेंट्स में, इवन टॉडलर्स में, बिलो 3 years एज में भी 6 to 8 एपिसोड कॉमन कोल्ड के हो जाते हैं. बिकॉज बेसिकली इन्नेट इम्यूनिटी कम है, उनकी इम्यूनिटी को बनने में टाइम लगता है. एंटीबॉडीज धीरे धीरे बनती हैं, टाइम लगता है. तो ये जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इम्यूनिटी का है. दूसरा, ऐसा रिसर्च में पाया गया है रिसेंटली कि एक मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन प्रोटीन होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है बच्चों में, वो बाद में डेवलप होता है. तो मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन डेफिशिएंसी प्लस लैक ऑफ इनेट इम्यूनिटी कॉजेज. जो कॉज क्या होता है, कॉमन कोल्ड कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कॉज डायरेक्ट हैंड कॉन्टैक्ट. बच्चों की इनएडवर्टेंटली हैबिट होती है. अगर आपने कभी इन्फेंट्स को नोट किया हो, 1 year के नीचे बच्चों को या उसके आसपास की एज ग्रुप में, वो जिस भी चीज को देखते हैं उसको टच करना चाहते हैं. टच करके वो महसूस करके उसको सीखना चाहते हैं कि क्या है. ये उनका कौतूहल नेचुरल होता है. और टच करने के बाद इनएडवर्टेंटली हाथ उनका नाक पे या आंख पे जाता है, और वहां पे एक्चुअली वो फोमाइट्स की तरह एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स. वहां पे ड्रॉपलेट्स पड़ी होती हैं वायरस, और वो वायरस उनको जाके उनकी नाक में और आंख में जाके कंजक्टिवाइटिस या राइनोसाइनोसाइटिस कर देता है. इसलिए इस एज ग्रुप में ये ज्यादा कॉमनली मिलता है, स्कूल गोइंग एज ग्रुप तक. थैंक यू डॉक्टर. एक और क्वेश्चन है जो कि देखा जाता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे त्योहार और बहुत सारे व्रत उपवास रखे जाते हैं. जैनिज्म तो काफी ज्यादा बोलता है फास्टिंग के लिए. तो ये क्वेश्चन आया था कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो जो कि लंबे लंबे उपवास रखने हैं, या किसी 7 दिन के बाद कोई एक त्योहार आ गया, एकादशी आ गई, या फिर कोई, तो ऐसा उपवास मंडे रखते हैं कई लोग ये फास्टिंग रखते हैं. मैं अपने को इसमें बहुत सक्षम नहीं समझता. और पहले कहते थे कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अपने आप को बहुत योग्य या सक्षम नहीं समझता हूँ. और फिर अगर मैं कुछ जवाब दूंगा तो कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो सकते हैं. इसके लिए मैं जो आपकी जो मैडम जो वक्ता हैं आज, योगिता जी, वो डाइटिशियन भी हैं, ये सवाल मैं उनके लिए छोड़ता हूँ. अच्छा, थैंक यू. मेरे पास एक सवाल और आया हुआ था, आई एम जस्ट रिमेम्बरिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो. वैसे ये इन बच्चों के लिए कितना सिग्निफिकेंट है पता नहीं, बट पूछा है तो मैं जवाब देना चाहूंगा कि फिब्राइल कन्वल्शंस क्या होते हैं और क्यों हो जाते हैं जी बच्चों. हाँ जी. तो फिब्राइल कन्वल्शंस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. कन्वल्शन मतलब दौरा का मतलब इस तरह के जर्की एबनॉर्मल मूवमेंट्स होने लग जाते हैं बच्चे में. फिब्राइल कन्वल्शन का मतलब बुखार के साथ दौरा. जब 6 महीने से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, दे आर प्रोन टू फिब्राइल कन्वल्शंस. किसी भी बच्चे को कभी भी 100 या 102 के बीच में फीवर के आसपास सडनली ये कन्वल्शन शुरू हो जाते हैं. और इसकी इंसिडेंट जनरल पॉपुलेशन में 2 to 5% है. यानी हर 100 में से 2 या 5 बच्चे, 2 से लेके 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक दौरा पड़ेगा ही पड़ेगा. ये परसेंटेज है इसमें. मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ये कोई बहुत भयावह चीज नहीं है.
पेरेंट्स के लिए या गार्जियंस के लिए वो साइट बड़ी भयावह होती है जब बच्चा इस तरह के जर्की मूवमेंट्स करने लग जाता है। तो ये फिब्राइल कन्वल्शन है, बुखार के साथ दौरा। ये दिमागी बुखार नहीं है, कई लोग इसको ऐसा समझते हैं कि दिमाग में चढ़ गया बुखार और उसकी वजह से, वो ब्रेन फीवर या मैनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, वो कंडीशन अलग होती है। और ये फिब्राइल कन्वल्शन है, ये स्वतः रुक जाते हैं और इनका इलाज भी बहुत सिंपल है कि बुखार का जो है रोकथाम की जाए और जैसे ही बुखार आए तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए ताकि भविष्य में उसको वापस से उस तरह का दौरा नहीं पड़े और 6 साल 7 साल तक जाके स्वतः ही वो अपने आप ठीक होना ही है। थैंक यू डॉक्टर। अगर कोई और सवाल आपके पास हैं तो आप टेक्स्ट में टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर आप पूछ भी सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर पूछ सकते हैं। तो और कोई बात रुचि जी, एनीथिंग एल्स? सर, मुझे लगता है कि ये जो इस समय बारिश का टाइम है और मॉनसून का टाइम है, उस समय में अगर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बिहार से भी हैं और नेपाल से भी हैं और बहुत अलग-अलग जगहों से हैं, तो वहाँ पे जाना एक बड़ी मतलब नामुमकिन सी चीज़ है, क्योंकि उनके पास जैसे अगर फील्ड्स हैं या घरों में भी हैं तो पानी बहुत ज़्यादा है। तो वाटरबॉर्न जो इन्फेक्शंस हैं, अ, उनसे कैसे बचना है? क्योंकि ये वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि लगातार 1 महीना हो गया है। मेरे ख्याल से यहाँ जो बिहार से बच्चे हैं, आप बताएँगे आपके यहाँ कितनी बारिश हो रही है? कोई बताएँ? अगर आप ऐड करना चाहें। 1 महीने से बारिश हो रही है, तो वहाँ पे एक कुछ फंगल इन्फेक्शन की भी एक ये होता है, तो उसमें क्या करें? कैसे हम डेली में कैसे उसको रोकें? शरीर को ज्यादा देर तक गीला ना छोड़ें। फंगस मॉइस्ट एरिया पे ग्रो करता है। ड्राई रखें, चाहे बरसात में से भीग के आए हैं चाहे घर में हैं, इमीडिएटली अपने को ड्राई करें। ड्राई टॉवल यूज करें हर बार, गीली टॉवल यूज ना करें, बहुत जरूरी है। ड्राईनेस, जितना ड्राई रखेंगे फंगल के चांसेस कम रहेंगे। पर ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चारों तरफ तो बारिश हो रहा है, पानी है, तो जो तो अब ये तो एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है। चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए तो मानवता आगे बढ़ती है। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी, क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है या कुछ ऐसा जो हम रेगुलर होम रेमेडी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड नहीं, दीज़ मेडिकेशंस तो इन्फेक्शंस? बहुत अच्छे अवेलेबल हैं अगर कोई फंगल इन्फेक्शन होता है, बट हर फंगल इन्फेक्शन अलग अलग मेडिसिन रिक्वायर करता है। सेम मेडिसिन फॉर एवरी फंगल विल वर्क इज नॉट नेसेसरी, पहली बात। दूसरी बात, प्रोफाइलेक्टिकली, जिसके हम बचाव के लिए या रोकथाम के लिए हम पहले से कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। इसमें उनको अपना हाइजीन और अपना जो ड्राई रखेंगे तो ही वो रह पाए, उसके अलावा कोई इसमें सोल्यूशन नहीं है। They have to take अच्छा। due precautions, keep themselves dry as far as possible, and maintain hygiene. Okay, I'm still waiting for your questions, dear students. Sir is waiting for your question. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। पंकज, आदित्य, आदित्य आपका सवाल अभी लिया भी गया था। कुणाल, नेहा, कोई भी, अजीत, कोई भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। शंभू कुमार। So there is no question as such, and अच्छा, can we proceed over to the next speaker? यस, तो And थैंक यू सो मच सर, आपने काफी अच्छी जानकारी दी है। और अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है बच्चों के, तो आप प्लीज टाइप करके और फिर दे सकते हैं, उसका सर उसका आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। okay, thank you, नाउ sir. आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर योगिता जोहार। she is the she is at Mahavir Cancer Hospital. Ma'am, are you there? Hello. Dr. Yes, Yogita, yes, yes, Dr. yes. Yogita, Dr. Yogita Johar. Okay, welcome, ma'am. Uh, your video, your camera is off, ma'am. Just wait a second. Okay. Aditya, you are late. Sir will answer your question. This question is for sir. So, sir will answer. It's in chat box now, so sir will answer later on. Okay. So, Dr. Yogita is she's a very good dietitian and she's working with the Mahavir Cancer Hospital.
and she is here to tell all of you that in this monsoon season, in this pandemic time, how you should behave, how you should live, what you should eat. Welcome, madam, and we are really wish to hear from you. Dr. Yogita Johar. Thank you so Yes. much, first of all, to invite me. And here I'm going to share a PPT. Okay. Is it showing you? Yes, yes. It's visible, ma'am. Okay. So, our topic is how to prevent COVID-19 and infection in monsoon from diet. First of all, and as you introduced my intro, I'm working in the Bhagwan Mahavir Cancer Hospital and I'm specialist in pediatric department. The first of all, how this risk is increased and why we need a particular diet for the particular monsoon or particular season or particular for the particular disease. So, in co-infection is when a person contract two or more disease at the same time. That means simultaneously infection of a healthy cell by two or more virus particles. During the COVID-19 pandemic, many instances of co-infection have occurred. During the monsoon, the changes of dengue increases, which means that the simultaneously infection of COVID-19 and the dengue is challenge posed to many doctors and medical professionals. Dengue and COVID-19, there can be symptoms that are hard to tell apart. Both share common elements that can lead to confuse and common difficulty in identifying the source of illness. Fever, fatigue, headache, joint, and muscle pain are some of the symptoms of dengue that can also appear in COVID-19 patients. Occasionally, patients down with dengue can experience nausea and vomiting too. COVID-19 symptoms like skin rash can also occur in patients who contract the dengue virus. Why? Which diet is helpful for that particular diagnosis? We need a well balanced diet and eat a healthy food and avoid street foods and junk foods, outsourced food basically. Drink plenty of water and drink clean water, or if it is possible, then drink lukewarm water to hydrate yourself. Regularly consume vegetables and fruits rich in beta carotene, ascorbic acids, and such essential vitamins. Certain foods like mushroom, tomato, bell pepper, and green vegetables like broccoli, spinach are also good options to build resilience in the body against infection. You can eat a variety of fresh and unprocessed foods every day to get the vitamins, minerals, dietary fibers, proteins, and antioxidants your body needs. Drink enough water, avoid sugar, fat, salt, and significantly lower the risk of overweight, obesity, heart, and disease. So, after that, I'm just one line sentence. I'm just saying that if you required and if you need to be safe and to save your family members from that particular disease of that from that particular environment or that particular diagnosis which is coming, so you can have
everything which is cooked at your home. Don't go with the outsources food. Don't have the outsource of junk foods, because जो एज आप लोगों की है उस एज में बच्चे बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, लाइक पिज्जा, बर्गर, पार्टीज होती है. Some of you might have started the drinkings and all, so that is not good and that is not safe for your body and your health also. So right now the time is you have to be uh, little bit, आपको कंसर्न मैम होना पड़ेगा अबाउट हेलो योर डाइट. हेलो यस. सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम. मैम आपका कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. ओके. और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी आए थे और वो कुछ क्वेश्चन इस तरह से थे कि जो कैंसर है उसका कारण क्या है. क्या ओके. फूड कारण है, गलत फूड कारण है, क्या ओवर ईटिंग भी कैंसर का कारण है. कैंसर का कारण है क्या. कई बार कहा जाता है कि ज्यादा चीनी खाने से होता है, ज्यादा नमक खाने से. नमक नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए. एक्चुअली है क्या ये, व्हाट इज कैंसर, ये होता कैसे है. सो फॉर द कैंसर डियर, कैंसर कोई चीनी और शुगर से नहीं होता है. इट इज जस्ट अ मिथ. ओके. And cancer can be happen in every age and in every stage of time. So in that time you can all, जो आप क्वेश्चन था आपका ये. बड़ा सवाल ये है कि बचें कैसे, इससे कैसे बचें, या हमें कैसे पता लगे कि हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, या कोई सिम्टम हो या कुछ ऐसा हो जो हमें बताए कि हम ये चीज हो सकती है, या फैमिली मेंबर या रिलेटिव्स में अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना या अपनी फैमिली का हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए. सो इन द फुल बॉडी चेकअप आपको पता चल जाता है कि आपका बॉडी सिस्टम, आउटिंग बॉडी सिस्टम और इंटरनल बॉडी सिस्टम पूरा एकदम सही वर्क कर रहा है. एंड इफ़ कहीं अप एंड डाउन आता है तो आपको डॉक्टर, जो फिजिशियंस होते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, वो आपको कंसल्ट कर देते हैं कि ये थोड़ा सा रिमार्क आया है आपकी डाइट्स को लेकर, आपकी बॉडी को लेकर के, या फिर कुछ हुआ है इसमें. रेस्ट, अगर आप अपना बॉडी चेकअप करवा के चलते हैं कंटिन्यू हर 6 मंथ से या फिर हर साल, तो आपको पता रहता है कि हाँ मुझे कोई डिजीज़ का कुछ ऐसा खतरा होने वाला है. बट व्हेन यू स्टार्ट, आपका जब भी कंटिन्यू आप लंबे समय से अगर आप चेकअप नहीं करवा रहे हैं, कोई डिजीज़ हो भी रही है तो आप किसी से पूछ के कोई मेडिसिन ले लेते हैं विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, और कुछ भी होता है तो आप रैंडम कोई भी मेडिसिन उठा करके खा लेते हैं जो आपको पता होता है कि हाँ इससे तो मैं ठीक हो जाता हूँ. बट उससे नहीं पता कि आपको साइड इफ़ेक्ट क्या हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो यू हैव टू गो फॉरवर्ड टू द कंसल्टेंट डॉक्टर और डॉक्टर इन द हॉस्पिटल. एंड कैसे हो जाता है, कैंसर कैन हैपन, आई ऑलरेडी टेल यू, कैंसर कैन हैपन एट एवरी एज और किसी भी स्टेज में हो जाता है. इन दैट केस आपको नहीं पता चलता, बिकॉज काफ़ी सारे केसेस मेरे सामने मैंने देखे हैं जो लास्ट स्टेज पे आए हैं, फोर्थ स्टेज पर आए हैं, थर्ड स्टेज पर आए हैं, जहाँ पर सेविंग ऑफ लाइफ बहुत कम रह जाती है परसेंटेज. सो हेलो यस. मैम, ये कहा जाता है कि अगर आप स्मोक करते हैं तो जाहिर है कि आप अपने लंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये लंग कैंसर को बढ़ाने वाला होता है. लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, जो कि बच्चों ने पूछा है एक सवाल, कि कोई अगर नॉन स्मोकर है और अगर कोई नॉन ड्रिंकर भी है, मगर फिर भी वो इस बीमारी से पीड़ित दिखता है, बाद से पता चलता है कि उसे ये परेशानी है. तो ये इसका क्या कारण हो सकता है. क्योंकि देखिए, अगर आप कहते हैं कि स्मोकिंग गलत है, तो जो स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, उनको कैंसर नहीं हुआ, लेकिन जो बिल्कुल बेचारा जो बिल्कुल अच्छी लाइफ जी रहा है उसको कैंसर हुआ. तो ये ऐसा क्यों, ऐसा सिम्टम ऐसा देखा जाता है, ये बच्चों का कुछ सवाल है. ये लंग कैंसर का इसलिए देखा जाता है बिकॉज समहाउ क्या होता है, बिकॉज नाउ दिस डिजीज इज अ हाइब्रिड डिजीज.
तो इफ अगर आपके हाइब्रिडेशन में फ्रॉम द जनरेशन आपको मिला है तो ये समहाउ कहीं भी हो सकता है बॉडी में। ट्यूमर एज अ ट्यूमर फॉर्म हो सकता है, एज ए आपको ब्लड के कैंसर में हो सकता है, या फिर कहीं बॉडी पार्ट में हो सकता है, या फिर मेटास्टेक फॉर्म में हो सकता है, जो मल्टीपल डिवाइड होता रहता है बॉडी के अंदर। आप कितनी बार भी क्योर हो जाओ, कितनी बार भी ट्रीटमेंट लो, आपको मल्टीपल उसको दोबारा से दोबारा आपको कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। सो इन द कैंसर, जैसा आप कह रहे हैं कि जो स्मोकिंग कर रहा है उस पर्सन को नहीं हुआ, लेकिन जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है उस पर्सन को एक हो गया है, तो उसके केस में हेरिडिटी जरूर रही होगी। अगर हेरिडिटी नहीं है तो that person cannot suffer from cancer in the lungs, and if that person family is suffering from somewhere cancer, then वो हेरिडिटी हो करके कहीं भी बॉडी पार्ट्स में डेवलप हो जाता है। एक और सवाल आया है कि अगर ब्लड कैंसर किसी को है तो जी। उसको अपनी डाइट में क्या परिवर्तन करने चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि इस तरीके की जो डिजीजेस हैं इसमें कीमोथेरेपी एंड अदर थेरेपीज होती हैं जो बड़ी ही मतलब काफी तकलीफ दे थेरेपीज हैं, तो ऐसे में पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए? बिल्कुल। मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, बिकॉज मेरा जो रिसर्च हुआ था वो इसी टॉपिक पे हुआ था और बच्चों के ही डिपार्टमेंट पे हुआ था, पेडियाट्रिक वार्ड पे। सो मैंने ये पर्सनली देखा है कि जो बच्चों में ब्लड कैंसर होता है, यहाँ पे जैसा आपने कहा कि कीमो दिया जा रहा है, रेडिएशन दिया जा रहा है, उन्हें साइड इफेक्ट होता है, दिक्कत होती है, काफ़ी सारे मूड स्विंग्स होते हैं। सो इनडेक्ट हम बच्चे हमारे पास में करीबन 1.5 से 2 साल तक रहते हैं, कभी लंबे समय तक 2.5 साल तक भी रहते हैं। सो दैट टाइम हम बच्चों को इंडक्शन से लेकर के टिल लास्ट कीमो और टिल लास्ट रेडिएशन तक हम उन्हें डायग्नोस करते हैं, उन्हें बताते हैं कि दिस इज द डाइट डे बाय डे। उन्हें एक दिन भी हम नहीं छोड़ते हैं कि आज तुम फ्री हो तुम कुछ भी खा लो। वो कुछ भी खा रहे हैं तो वो हमारी मर्जी से ही खा रहे हैं, डाइटिशियन से पूछ कर ही खाते हैं कि मैम, और पेरेंट्स भी खुद इतने सफर हुए होते हैं जो पूछते हैं कि मैम हम इन्हें क्या खिलाएं कि बच्चे का ट्रीटमेंट उन्हें असर करे, उसका साइड इफेक्ट नहीं हो। बिकॉज कीमो चलेगा और रेडिएशन चलेगा तो उसका साइड इफेक्ट डेफिनेटली शो होता है। बट इफ दैट चाइल्ड हैव गुड इनटेक पावर और गुड फूड इनटेक पावर, सो क्या रहता है उस केस में हमें खुद खुशी होती है कि बच्चे का इनटेक इतना अच्छा है कि उसे साइड इफेक्ट इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ेगा। सो अगर किसी के घर में कुछ ऐसा, नॉट इन द चिल्ड्रन केस, अगर किसी बड़े को भी कुछ कैंसर का केस है किसी के भी घर में, सो आई पर्सनली सजेस्ट कि उन्हें डाइट का इंटेक प्रॉपर रखना चाहिए। जरा सी डाइट में लापरवाही करते ही आपके ट्रीटमेंट में अप्स एंड डाउन स्टार्ट हो जाते हैं। आपके ट्रीटमेंट के अलावा आपको अदर नोजिया, वॉमिटिंग, कफिंग और दूसरी डिजीज जॉन्डिस और अदर अल्टरनेट डिजीज आपको स्टार्ट हो जाती है। वो अल्टरनेट डिजीज ना हो, दैट्स व्हाई हम इन्हें प्रॉपर डाइट सजेस्ट करते हैं डे बाय डे। ओके, आप यहाँ जो बच्चे हैं अभी, आप मैडम से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेहा, पंकज, शंभू, आदित्य, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, पूछिए। Yes. पंकज, मैम, छोटे उम्र में ही बाल क्यों पक जाते हैं? कम उम्र में ही छोटे उम्र में बाल सफेद बाल क्यों हो क्यों पक जाते हैं? जाते हैं? अच्छा, बाल सफेद क्यों हो जाते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। बिकॉज कहीं ना कहीं आपने बचपन में अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ली है। आप कंटिन्यू, जैसे गांव का माहौल क्या रहता है, गांव के बच्चों का मैंने जहाँ तक देखा है कि वहाँ के बच्चे मीठे ज़्यादा खाते हैं, मीठा, चीनी या कुछ मिठाई होगी या कुछ भी खा रहे हैं तो मीठा ओवरडोज करके ले रहे हैं, नॉट पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे हमें कहा जाता है कि एक दिन का आपको 5 से 10 ग्राम शुगर लेना चाहिए, वो दैट इज सफिशिएंट आपकी बॉडी के लिए। लेकिन गांव में और बाकी लोगों में भी जिनका इंटेक फ्रॉम द चाइल्डहुड, शुगर, चॉकलेट्स, आजकल के बच्चे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कैफीन, चॉकलेट, शुगरी कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपकी एपेटाइट कम हो जाती है।
और जैसे ही अगर आप कभी अपने आप को देखते हो, खाने से पहले एक दिन एक काम करना, आप खाने से पहले मीठा खा लेना, आपकी डाइट 1 रोटी हो जाएगी। और वही नेक्स्ट डे आप खाने के बाद खाना, उस दिन आप डाइट 2 से 3 रोटी खाओगे और उसके बाद थोड़ा सा बाइट ही ले पाओगे मीठे का। सो ये डिफरेंस होता है आपके एपेटाइट को बढ़ाने का और घटाने का। तो बेसिकली जिनके वाइट बाल हो जाते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड, उनका स्टार्टिंग से यही रहता है कि उनकी आदत होती है एपेटाइट वो कम हो जाती है उनकी। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज ऑफ शुगरी इंटेक और मीठी चीज़ों का इंटेक इतना ज़्यादा हो जाता है स्मॉल स्मॉल फ्रिक्वेंट क्वांटिटी में, कि वो एक्चुअल में जो न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें जो उन्हें पेरेंट्स दे रहे हैं, जो घर पे उन्हें लेना चाहिए, वो नहीं ले पाते हैं। और उसकी वजह से उन्हें वाइट हेयर्स का फेस करना पड़ता है दिक्कत। मैडम एक क्वेश्चन और आया था कि सभी चीजों के लिए जैसे डॉक्टर अनुराग ने भी बताया कि वैक्सीन्स हैं, काफी सारी बीमारियों की वैक्सीन्स हैं, तो क्या कैंसर की कोई वैक्सीन है? नहीं डियर, एक्चुअली स्टिल नाउ कैंसर इज द वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज जिसका अभी तक कुछ भी क्योर नहीं है, अनटिल अनलेस इसको सिर्फ हम कीमो और रेडिएशन तक ही कवर अप कर सकते हैं। उसका लाइफ का एग्जिस्टेंस जो है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं बस। लेकिन वैक्सीन के तौर पे अगर बोला जाए तो वैक्सीन एज सच अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर अगर आप कैंसर का पूछ रहे हैं वैक्सीन, तो आपको फिर आप सीए कार्डियक डिजीज का भी पूछेंगी कि कार्डियक डिजीज का भी वैक्सीन होना चाहिए, जो उसका भी नहीं है। लीवर डिजीज का भी नहीं है, किडनी रीनल फेलियर डिजीज का भी नहीं है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर पर्टिकुलर जो हैवी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं हमारी बॉडी को चलाने के लिए, उनके रिगार्डिंग हमारे डब्ल्यूएचओ की तरफ से और फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स की तरफ से कुछ भी एज सच वैक्सीन स्टार्ट नहीं की गई है। वैक्सीन क्या होती है? टू सच सिक्योर आवर लाइफ, सिक्योर हमें क्योर करने के लिए, पर्टिकुलर हमें कुछ बाहर का इन्फेक्शन ज़्यादा हावी ना हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो इसलिए हमें वैक्सीन दी जाती है। वो वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर लीवर पे जाकर के एज ए इम्यूनो टाइप का काम करती है, जो इम्यून बॉडी को हमारे एक्टिव कर देती है। सो डेट अगर इन फ्यूचर अगर हमारी बॉडी में कुछ बाहर का वायरस या कुछ भी ऐसा एंटर होता है, सो डेट हमारा इम्यूनिटी एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के एंटीबॉडी बना करके उनसे लड़ सकता है। और वो एक्टिव भी तब होता है अगर आप जब बीमार पड़े हो, तब आपको पता है आप मेडिसिन लेते हो। वो एक्टिव भी तब होगा जब आप मेडिसिन पर्टिकुलर उस डिजीज के अकॉर्डिंग लेंगी, तब वो एक्टिव होता है आपका इम्यून। और इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर के आपके जो बाहर के वायरस है उनसे लड़ता है और आपको नेक्स्ट और नेक्स्ट टू द सेकंड डे आपको एकदम सही कर देता है। तो वैक्सीन आर ओनली टू क्योर योरसेल्फ। एक और सवाल था मैम जो कि डॉक्टर अनुराग ने जवाब नहीं दिया और आपके लिए जी रखा है कि क्या फास्टिंग अच्छा है? फास्ट करना अच्छा है या नहीं? क्या भूखा रहना ठीक बात है या नहीं? ओके, सी आजकल की लाइफ ऐसी है कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं फिगर के लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के। बिकॉज दे बट उन्हें नहीं पता जितना आप फिगर को लेकर के कॉन्शियस हो रहे हैं, उतना आप अपनी बॉडी के इंटरनल माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट को की मात्रा को खत्म करते जा रहे हैं। बेसिकली आई पर्सनली सजेस्ट, जैसा कि क्वेश्चन ये था कि भगवान के लिए पूजा हाँ करते हैं, हम जैसे पाठ हाँ करते जी हैं हाँ जी और हाँ हाँ व्रत करते हैं, तो लंबे समय तक हमें व्रत रखना लंबे चाहिए समय क्या? तक जी 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 बिल्कुल। तो मेरा इसका जवाब ये है कि अगर आप व्रत करते हो और लंबे समय तक कर रहे हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग ये होती है कि आप सिर्फ लिक्विड्स पर चल रहे हो, ओनली लिक्विड्स पर। उसमें आपका कुछ भी बॉडी वर्कआउट, इतना आपका बॉडी वर्कआउट डेली अकॉर्डिंग रह रहा है, जितना आप नॉर्मल डेज में खा रहे थे उतना आप फास्टिंग के डे पर भी खा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, नॉर्मल डे पर आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही थी तो वो रिकवर होती जा रही थी, होती जा रही थी, होती जा रही थी। बट नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरमीडिएट फास्टिंग, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी बॉडी को लिक्विड्स मिल रहे हैं और वो बॉडी में सिर्फ पर्टिकुलर लिमिट मिल रहा है, और वो लिक्विड की डोज इतनी इनफ नहीं है कि आपकी बॉडी की एनर्जी को काम कर पाए। आपकी बॉडी सर्वाइव पूरे दिन का जो आपका बॉडी का वर्किंग होता है, फ्यूल होता है, उस पर्टिकुलर फ्यूल के हिसाब से आप उस इंटरमिटेंट फास्टिंग के डे पर आप फ्यूल बहुत कम ले रहे हो।
तो इसलिए आई पर्सनली सजेस्ट आपको फास्टिंग करना चाहिए, वंस इन अ वीक करना चाहिए, लेकिन फास्टिंग आप पूरे दिन रखो, बट इन द एंड इवनिंग में आप टाइम से आकर के लंच डिनर कर लो, जिसे हम उपवास खोलना कहते हैं, है ना। तो आप उपवास खोलो अपना। सो इससे क्या होगा, आपका बॉडी बैलेंस अप हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी ने पूरे दिन आपकी सेव्ड एनर्जी, जो हमारी बॉडी के अंदर सेव्ड होती है एज ए कार्बोहाइड्रेट और एज ए फैट, एज ए फैट उसने एनर्जी निकाल करके यूज कर लिया है, तो ना अब उसे भी उस फैट स्टोर को भी अपना स्टोर पूरा करना है, तो उसे भी अपना एनर्जी खत्म बैलेंस करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई पर्सनली सजेस्ट कि आपको फास्टिंग ऐसी करनी चाहिए कि आप कर रहे हो तो दिन में या तो स्मॉल स्मॉल मील का कुछ ऐसा लो कि आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं आए, और आपका फास्ट अगर भगवान की श्रद्धा रख करके कर रहे हो तो आपका वो भी व्रत ना टूटे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को 10 दिन कर लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप थोड़ा कार्ब्स ले लो, देन उसके बाद में आप फाइबर ले लो, देन लिक्विड्स ले लो, देन नॉर्मल ले लो, तो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इससे आपकी बॉडी इंटरनल अफेक्ट होती है, आपको अफेक्शन नहीं पता चलता है। ये अफेक्शन कब पता चलता है, जब आप किसी बीमारी में ग्रसित हो जाते हैं, और ग्रसित होने के बाद में आपको भी नहीं पता होगा कि आप इस बीमारी से ग्रसित क्यों हुए हो। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ था, आपका लाइफस्टाइल कैसा रहा है, दिनचर्या कैसी रही है, आपको ये किस वजह से दिक्कत हुई, क्या हुआ ऐसा, तब हमें पता चलता है कि यस दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, ये पर्सन कंटिन्यू इंटरमीडिएट फास्टिंग को इतना हो चुका था, इनहेबिटेड हो चुका था कि ये डिजीज होना लाजमी है। तो दैट्स व्हाई आई पर्सनली सजेस्ट कि आपको वंस इन अ वीक रखो, लेकिन शाम को या मिड डे आप कुछ हैवी खा लो कि आपका फास्ट भी हो जाए और आपका बॉडी फ्यूल भी इतना खत्म ना हो कि आपको आगे जाकर के सफर करना पड़े। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर योगिता जोहार, आपने बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए। डॉक्टर अनुराग शर्मा, मे आई रिक्वेस्ट यू टू आंसर वन मोर क्वेश्चन विच इज बीन सेंड बाय आदित्य, कि एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं, हाउ मच एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन फॉर कोल्ड एंड फ्लू? डॉक्टर अनुराग शर्मा, क्या सर आप इसका जवाब दे पाएंगे? डॉक्टर अनुराग, हेलो? Okay, I will send the question to sir. I think he is not available right now here. He is not answering. So I'll actually send Aditya, I'll send the question to sir, and I'll definitely will be giving you the answer also. Right? Thank you so much, Yogita ma'am, for joining this webinar and making all of us aware about the right lifestyle, right food. Thank you so much for coming here. Thank you so much, Dr. थैंक यू Anurag डियर। Sharma. थैंक यू डॉक्टर योगिता जोहार, आप यहाँ आए, हमारे बच्चों को गाइड किया, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपकी गाइडेंस में हम लोग हमारे बच्चे जरूर इस पेंडेमिक को जीतेंगे, और बाकी दूसरों को घर में भी बताएंगे कि क्या सही तरीका है जीने का, किस तरह से खान पान का और किस तरह से व्यवहार और पर्सनल हाइजीन और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, वो जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डियर।